optimized, value added, have to be acquired and implemented very fast. Private sector will lead the race. My focus will be on private sector only. About 100 new and old fields with upgradation will offer great opportunities to many of us quite fast, such as freelancing, robotics, electronics, sustainability, delivery services, healthcare equipments, pharma sector, online music and entertainment sector, technology-based innovative companies, research-oriented organizations, online skill building, online training sector, online hobbies learning, yoga and meditation, online sports and gaming, value-added engineering services, repair and maintenance services, environment and pest control business, unconventional energy sector, innovation in agriculture and horticulture sector, online gifting business, higher education and specialization, startups B2B and B2C, service sectors, online services, technology inputs to small and medium businesses to upgrade them, re-engineering of small businesses, e-learning, hospitals and nursing sector, fresh food delivery business, FMCG sector, bulk drugs, insurance, risk management, digital automation, telecommunication, e-commerce, online summer-winter learning programs, air and water purification industry, biomedical, bioengineering, digital healthcare, short distance logistics industry, agro industry, AI and IoT focused business will change the rule of the game and many more. The list is very big. So don't get upset, don't get worried what will happen. The question here is, if you conquer this 3 to 6 months settling time, you will find a new world for you. But during this time, adding new skills, tuning yourself to these sectors, at least I expect about 100 avenues in the improved version will be operational in the early 6 to 9 months period. So getting worried, panic is not the answer. But this is a time to be cool, patient and think, what is my attitude? Which direction I would like to go? Or I think I need to acquire or add on this skill. You are your best judge. So talk to yourself, you will find the answer and move forward on that journey. Some businesses will undergo major changes and will take much longer time to pick up. Travel industry, tourism, airline industry, cabs, transport sector, automotive sector, restaurant business, event management, construction business, entertainment industry, malls, trade fairs, exhibitions, hotel industry, coaching industry, BPO services, international travel, gym business, textiles, cruise, sports, mandis, education, security services, air conditioning, luxury products, and many more. But this should be only for awareness, because these will be available in the new form maybe 12 months to 24 months or 30 months later, because they may not offer new opportunities to people. And as youngsters, we are looking for new opportunities. So you need to focus on those many new avenues which will come very fast, maybe less than 6 months time, and which will provide tons of great opportunities. You should be very prepared that the lifetime employment concept will vanish. The stay
with the organizations will be for shorter duration, maybe 2 years, 3 years, 4 years. They spend the time, contribute there, move to a new field. Maybe something of that nature may really get visible. Another new avenue that would be there, synergy between businesses. B2B and B2C will be a very positive step to help each other. For example, let's say gym equipment manufacturer will synergize with gym owners to help in solving business challenges. Otherwise, both the businesses will collapse. So there will be a nature of synergy between B2B or B2C to facilitate how we can innovate and offer to delight the customers. Or let's say solar product manufacturers will synergize with builders to offer value-added housing, apartments, commercial places, or construction sector to delight the customer that buildings become energy efficient, so they get additional value at a lower cost. Recurring expenditures get optimized. Many such synergies will be experienced in business and industry. India has the world's 5th largest education setup with 1,000 plus universities, 41,000 plus colleges, 3 lakh plus schools, and about 320 million students. Post COVID-19, China will be a major subject for active consideration for the future of many nations. Listen very carefully this, I am repeating it. Post COVID-19, China will be a subject for active consideration for future of many nations. The pandemic created a big discomfort in the minds of many nations, leading to relocating the world's manufacturing base outside China. Let us see what China contributes as a manufacturing base. Some of the China's manufacturing capacities are said to be meeting 90% of the world's computer manufacturing, 90%. 70% of the world's mobile requirements are manufactured in China. 80% of the world's toy requirements are manufactured in China. 70% of the air conditioners of the world requirement are manufactured in China. 70% of the branded luxury items and many more are manufactured in China, and so on, the list goes on. Surprised to also note that about 90% of the United States flags are also manufactured in China. It is expected that at least 50% of these manufacturing units may start moving out of China in the next 3 to 30 months. About 50%, not total. Many Asian countries are looking forward to this opportunity, including India. The initial indications are not very encouraging for India. Out of the first 50 companies who have come forward, I think only 3 have opted towards India. This is what I listen from various news sources. But I am sure that India will have a great possibility to move forward. Many Asian countries are looking forward for this opportunity, including India. Our country has great potential to capture about 50% of this potential business due to many positive strengths. That means 25% of the manufacturing base of China has a potential to get relocated in India. India being the world's largest democratic sustainable nation. This is a very big strength. Trust and transparency of the governments is also a very important global point. Very good R&D infrastructure and facilities. Good availability of power and other resources in the country. IT, engineering and management, business-oriented brain power is also a great strength for the country. Skilled workforce, availability of plenty of land and other resources. One of the fastest developing Asian nation. Investor and industry-friendly nation. And many more positive things which will make the investors with giving consideration to a country like India, because the size of the country and being the largest democracy are very strong points which will support India in the long run. During the last 4 to 6 weeks, I could see
some smart projects being implemented by students from the campus with hardly any investment. Many of you would have also done many and can start as a part-time activities, lot of good things. Like I learned from one of my startup whom I'm mentoring today on an anniversary day or some particular day, and it is on a subscription base, and for senior citizens it's totally free. Another thing I observed that umbrellas for social distancing, Technicolor new design umbrellas will automatically create a distancing between people, and some people are already on to his work in southern part of the country. Online training to do how to do things at home. People started guiding for online repairs, online servicing, waste to value added product, lot of online small projects at a very reasonable price. And people have indicated that in the 2 weeks of their operation, at least 20, 25, 30, they have been able to get paid subscriptions for this. So I think that there is a great potential for these things to happen very fast in a country like us. Online training, writing special customized books. I've seen people started writing small books for various occasions to the people. Like somebody is having anniversary, you can talk to the people, get the data and create a small dedicated book of 20 pages, 25 pages with pictures and all that, and send it. It may cost only 500 rupees or 1000 rupees. But people have started, and that gentleman who is doing it has got about 10 orders in the last 12 days. Online happy memory albums and for near and dear ones, and many more. And I've seen that in all these half a dozen projects which I was sharing, people have been able to do some commercial transaction. Possibility of scaling up does exist, and practically investments are not there. There can be hundreds and hundreds of ideas, thousands of ideas each one of you will be having. Try to take the initiative and move forward. Move out of comfort zone. Reinvent your career. COVID-19 has changed the job market almost overnight. Challenges become opportunities with time. I am confident that the above scenario and opportunities will facilitate in giving you a positive feel about the coming time for the student community. My best wishes to each one of you for a great career ahead of you. My thanks to Vipul Kumar and Priya along with her team for inviting me to this program. Thank you very much. Wonderful being with you. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your insights. It was really valuable. We can see that everything is going online right now, and you can also see the broadband and network issues that we are facing. That like while everything is going online, the online network infrastructure is not that strong to support it. So I think we would need a lot of infrastructural support also to do things online. Priya, I think your point is very valid, but remember, when there is a pain, solution comes. So you will find a dramatic change in the internet services in the country in the next 12 weeks. I am very confident. So be very positive, because when the problem gets projected, solutions will come. Because till now this was not a priority sector. Internet was a side activity. Today it becomes a priority sector. So you'll find that many people moving into this, and in 12 weeks you'll find, you see how the video conferencing platforms have become active, and they are all working. So the necessity creates the end result. So be positive, great things will happen. Yes, sir. We are hopeful that it will happen. Thank you so much again, sir, for sharing your insights. And welcome back, Dr. Jawahar. Before you start, sir, a person has a question for you. So I'll ask that question first so that we can begin with there. So somebody asked, just a second, I'll find that question. Student in class who wants to ask that what are the skills that he needs to work on in order to
avoid becoming obsolete in context of corporate and job sector? Uh, I think these are very common questions which people from any field will have it. See, the question here is your degree, your certificates only facilitate for an interview call. After that, when you talk, what is there in your brain? What is that you express? What is that you want to will suppose you are fresher and join as a team. What is important is how quickly you learn a job, how quickly people and things, how quickly you contribute. But every industry today, whether it's a corporate, whether it's MSMEs or startup, they will look number one. There is no settling time. The person who goes into the job, people expect that you start contributing immediately. That means your ability to grasp things fast, your ability to concentrate on the work, your ability to see that any refinement, any improvement, any value addition, if you can do it, do it. Let me give you a small example. When I was a CEO of a business, I had a marketing center to the country. And marketing people are generally normal graduates, maybe BCom, BA, BSc of that nature. And there's a marketing head, generally they are engineers or MBAs. In one of the region of Uttar Pradesh, the marketing head, I was shocked. There was saturated level. The very first one is sold 22. You have to use the brain to damage that you do it. So be creative, be innovative. Thank you, sir. We have Dr. Jawahar back. I'm back. Sir, I'm back. so, do you want me to repeat the question that was asked? No, I got the question. So Okay. she says that what are the opportunities in psychology post COVID? So happily मुझे बताने में बहुत खुशी है, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है वो, कि there are a lot of mental diseases that are coming in during the COVID area. तो इस वक्त जो है काउंसलर्स की both government and non-governmental organizations में we are requiring a lot of counselors who have a background in psychology. यानी जो पेशेंट 14 दिन के क्वारंटाइन में जाता है और 10 लाख लोग यूएस में जा चुके हैं ऑलरेडी और वहाँ काउंसलर्स नहीं है, तो उनसे 14 दिन बात करने के लिए कि तुम अकेले हो लेकिन हम तो तुम्हारे साथ हैं, इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है. तो आई एम सीइंग ए ह्यूज डिमांड इन साइकोलॉजिस्ट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर. तो निश्चित रहिए उसमें कोई कमी नहीं आएगी जॉब में, ये मैं निश्चित बताना चाह रहा हूँ. सेकेंडली मैं जहाँ पे रुका था वो ये था कि मुझे ये लग रहा है कि 8 इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी रीलोकेटिंग फ्रॉम चाइना का एप्लीकेशन इंडिया को दिया है एंड दे आर बिग इंडस्ट्रीज. तो मायूस होने की कोई बात है नहीं. मिस्टर गणपत राज हैज वेरी राइटली सेड दैट. हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. भले ही कोविड आ गया हो, आप घरों में बंद हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत फायदा उठाया होगा इसमें. मार्केटिंग के जहाँ तक उन्होंने बात की, कुछ स्किल सेट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे और हम लोग की तरफ देखने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या इंडस्ट्री बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा. एक बार जनरली अगर आप सोचें कि क्या इंडस्ट्री बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा. अगर मैं 10 बार गवर्नमेंट के अवेयरनेस कैंपेन्स कहते हैं कि 10 बार आप हाथ धो, वॉश योर हैंड्स 10 times एटलीस्ट इन अ डे फॉर 20 seconds, इसका मतलब पानी की खपत बढ़ जाएगी. इज दैट ओके? यहाँ तक तो लॉजिक समझ में आ रहा है. पानी की खपत बढ़ेगी, इसका मतलब पानी की कमी होगी. तो आई एम सीइंग इन फ्यूचर अ करियर अपॉर्चुनिटी ऑफ वाटर कंजर्वेटर्स, जो पानी बचा सके. मैं ये देख रहा हूँ कि जो शावर्स बनेंगे आपके, वो ड्रिप इरिगेशन की तरह उनके छेद छोटे हो जाएंगे ताकि नहाते टाइम आप पानी कम खपत करें.
हाँ, आप ये देखेंगे कि समुद्र का पानी जो 70% है, जिससे हम पानी नहीं निकाल पा रहे हैं पीने के, उसकी तरफ कुछ इनोवेशन होंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अगर ऐसे पेड़ या ऐसे बीज बनाएंगे जिसमें पानी कम लगता हो, ये चीज़ों में नया इनोवेशन आना शुरू होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बात के पीछे कुछ बात है कि मैं 8 साल की उम्र में रास्ते में इडली बेचता था। आई यूज टू सेल इडलीज इन द रोड इन विशाखापट्टनम, और मैं ठेले में बेचता था 25 पैसे की 2 इडली, और मैं पढ़ने स्कूल जाता ही नहीं था। तो अगर सर केन रॉबिन्सन ने कहा है कि स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, तो मैं स्कूल नहीं गया हूँ, इसलिए आज सोच पा रहा हूँ और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि किस तरह से हम इनोवेट कर सकते हैं। मैं क्या करता था, 11 ठेले होते थे, बाजू में मैं 12वां ठेला था, और 8 साल की उम्र में मैं छोटा सा था, और सब लोग इडली सांभर और चटनी के साथ बेचते हैं। मैं बोला 11वां मजबूरी है कि मुझे कुछ आता नहीं है करना, इसलिए मेरी माँ इडली बनाती है, मैं बेचूंगा। लेकिन ये 11 लोग भी इडली बेच रहे हैं, मैं क्या नया कर सकता हूँ जिससे। तो गणपत जी ने जो मार्केटिंग का एस्पेक्ट बताया, इट्स टोटली इन द ब्रेन कि आप क्या सोचते हो। तो मैं क्या सोचता था, उस रात को मैं सोचा कि क्या कर सकूँ जिससे कि अलग इडली मेरी बिक जाए। तो मैंने क्या किया उसमें कि मुझे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उस छोटी उम्र में जो समझ में आई, आज आप हंस सकते हैं, लेकिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। फर्स्ट, इडली इज वाइट। हाँ, ये पूरी दुनिया में जो इडली बिकती है सफ़ेद, और दूसरी है इडली का कोई टेस्ट अपने आप में नहीं होता, इसलिए सांभर चटनी के साथ खाते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी 11 ठेले दे रहे थे, मैं क्या दे सकता हूँ अलग, ये सोचा उस रात को। तो मेरा जो पार्टनर था जिसका ठेला था, उसकी वाइफ अचार बनाती थी। तो उसने बोला कि भाई तू अचार बेच, मेरा ठेले का किराया मत देना, और 10 बोतल अचार बेचेगा तो 1 बोतल तेरा फ्री। तो मैंने क्या किया, पहला बोतल अचार फ्री का जो आने वाला था 10 के बाद, वो पहले ही निकाल लेता था, और फिर एक चुटकी अचार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हाँ, उसी तरह मैं एक चुटकी अचार का निकालता था और इडली के बीचों बीच लगाता था। तो अब इडली सफ़ेद नहीं रह गया, हाँ, और दूसरा इडली चटक बन गया क्योंकि अचार लगाया मैंने। मेरी इडली सबसे ज़्यादा बिकने लगी, और 6 महीने में मैंने एक टपरी डाल दिया था, मैं ठेले से टपरी पे प्रमोट हो गया था। हाँ, तो आई एम सेइंग कि इफ देयर आर 11 पीपल सेलिंग इडलीज, डरना मत कि मैं क्या 12वां हूँ, मैं कैसे बेचूंगा। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप सोच सकते हैं, तो डरना तो बहुत आसान है, बेचना मुश्किल है। और अगर आप में वो डिफरेंशिएटर है तो कर सकते हैं, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हो। हाँ, बिकॉज मैं गया नहीं हूँ कहीं पे, आई एम नॉट बीन टू स्कूल, आई ओनली स्टडीड आफ्टर स्कूल। तो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। आप लोग थोड़ा सा, मैं अगर कड़वा हो जाऊंगा क्योंकि उन्होंने सारे एरिना जो ग्रोथ के हैं वो बात कर ली। आजकल आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि एटीट्यूड आप लोगों का अगर गलत होगा ना, तो एम्प्लॉयर आपको चूज ही नहीं करेगा। हाँ, मेरी मोबिलिटी, मैं बिहार का हूँ तो बिहार में ही काम करूँगा, यूपी का हूँ यूपी में ही काम करूँगा, दिल्ली हूँ दिल्ली में काम करूँगा। अब वो समय नहीं रह गया, ये मुश्किल समय है। आप अगर ये परिवर्तन ले आएंगे अपने आप में, मैं कहीं पे भी जाऊँ लेकिन रोजगार में या कहीं अपना काम करूँगा, तो वो शैकल्स की आई विल स्टे इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, वो समय गया। मोबिलिटी अब बढ़ गई है। दूसरा ये है कि आप ये नहीं सोचिए ये काम छोटा है, ये बड़ा है, ये मैं क्यों करूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं। मेरे पास छत्तीसगढ़ में मैंने एक प्यून की वैकेंसी निकाली तो 1.5 लाख एप्लीकेशन आए, उसमें से इंजीनियर्स थे। प्लीज अंडरस्टैंड कि मजबूरी के टाइम में हम जितना झुक सकते हैं, वो शुरुआत में ही झुक जाए ना, तो उस वक्त तक बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे जब समय आता है। और तीसरी बात यह है कि जब हम सैमसंग ने 8 इनोवेटर्स को दुनिया में बुलाया था कि हम नई चीज कुछ करना चाहते हैं, पानी का कंजर्वेशन जो है यूएन के मैंडेट में है, तो क्या करना चाहिए। 2002 की बात है। तो उन 8 में से मैं था और भारत से मैं अकेला था। तो हमको जब सैमसंग इनोवेशन सेंटर ले जाया गया तो मुझसे पूछा गया कि सर क्या इंडियन की एक खास बात होती है जो ना चाइनीज में होगी या अमेरिकन में नहीं। वो ये है कि वो इतने चैलेंजेस से जूझता है ऑन ए डेली बेसिस कि लिफ्ट बीच में रुक जाती है, लाइट बंद हो जाती है,
इतने चैलेंजेस से वो जूझता है कि उसको लाइफ इजीली लेने की आदत नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को बार बार चैलेंज करता है। तो उस समय मैंने बोला कि फ्लश में एक बटन होता है और चाहे आप 2 नंबर जाओ या 1 नंबर जाओ, 5 ही लीटर फ्लश होते हैं। और आप दिन में अमूमन एक आदमी 2 नंबर एक बार जाता है और 1 नंबर कई बार जाता है। और 2 नंबर में 5 लीटर पानी की जरूरत होती है, 1 नंबर में 2 लीटर पानी की जरूरत है। तो अगर मान लीजिए हमने 1 नंबर 5 बार गए हैं, तो हर बार 3-3 लीटर वेस्टेज हुआ। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर 2 बटन हो, जिसमें एक 2 लीटर का बटन हो और एक 5 लीटर का बटन हो, तो हमारे 15 लीटर हर रोज बचे। ये हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये सिंपल है, ये कोई बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन हम सोच क्यों नहीं रहे? ये सोचना, या दिस इज नोन एज द आर्ट ऑफ थिंकिंग। हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो ठीक है, सोशल स्टडीज में माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं कि साइंस में नंबर 1 आ जाना चाहिए, मैथ्स में 100 आ जाना चाहिए, वो सही है। लेकिन क्या आप सोच में आगे हैं कि नहीं हैं, या ठर्रे में सोच रहे हैं? एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ने मुझे बुलाया था फॉर ए कीनोट एड्रेस कि आप स्कूल नहीं पढ़े हो लेकिन दुनिया भर में आप ये चीज़ें बता रहे हैं। मैं यूएस गवर्नमेंट का भी एडवाइजर हूँ। हाँ, तो कैसे बताते हो? तो मेरे लेक्चर के पहले जो प्रेसिडेंट थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि इंडिया का रिसर्च बहुत खराब होता है, ज़्यादातर कट कॉपी पेस्ट होता है। हाँ, और मैं वहाँ अकेला इंडियन था और 1300 वाइस चांसलर्स थे। तो मुझे खराब लगा कि इंडिया को इस तरह बोल रहे हैं। एक्चुअली उसका कहने का मतलब था कि चूंकि इन्होंने पीएचडी यूएस से की है इसलिए ये अच्छे हैं। हाँ, लेकिन मेरे को मतलब ये समझ में आया ये तो इंडिया को गाली दे रहा है। तो जब मेरी बारी बोलने की आई तो मैंने बोला, व्हाट डू यू टीच इन प्री के? प्री के मतलब नर्सरी KG1 KG2। तो एक वाइस चांसलर ने हाथ खड़े किया और मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ ये चीज, आप क्या पढ़ाते हो नर्सरी KG1 KG2 में? तो उन्होंने कहा हम A to Z पढ़ाते हैं, 1 to 10 पढ़ाते हैं। मैं बोला कि आप A to Z पढ़ाते हो, हम भी वही पढ़ाते हैं, पूरा रिसर्च आपने किया होगा अच्छे से, हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा। लेकिन 1 to 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है, लेकिन जब आप 10 पढ़ा रहे हो, क्या आपने 0 पढ़ाया है? और ये सवाल हम सभी के लिए। 1 to 10 हम पढ़ाते हैं नर्सरी में, कभी 30 सालों से 40 सालों से हमने सवाल ही नहीं पूछा कि क्यों पढ़ाते हो भाई 1 to 10, भाई 0 to 9 नहीं पढ़ाते हो? हाँ, मेरे माँ बाप पढ़ा दिए, मेरे टीचर्स पढ़ा दिए, मैंने खुद पढ़ लिया। हाँ, और मान लिया कि ये सैक्रोसैंक्ट है, इससे आगे कुछ हो भी नहीं सकता। उस दिन उन्होंने 40 लाख रुपए मुझे दिए, उस समय डॉलर का रेट 40 रुपए था। उन्होंने 40 लाख रुपए दिए कि हमारे छोटे बच्चों को हम यूएस में क्या पढ़ाएं, इसके लिए आप रिसर्च करके हमको बताइए। उसका नाम हमने रखा थिंक करिकुलम। अब आदमी इस बात को कि जो आदमी स्कूल नहीं पढ़ा वो यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री को ये बता रहा है कि तुम कैसे पढ़ाओगे बच्चों। तो मेरे हिसाब से इन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि दिमाग खुला रखो। देयर इज नथिंग दैट विल स्टॉप यू। कोविड के बाद ये सोचो कि क्या क्या जगह में असर पड़ सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पानी का, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर सोशल डिस्टेंसिंग है और एक रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो और वहाँ पे 20 टेबल में 80 लोग बैठ सकते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग में उसमें लोग कम हो जाएंगे, बैठने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब या तो उसका धंधा कम होगा या तो फिर वो रेट बढ़ाएगा खाने के। हाँ, तो बिजनेस सेंस तभी बनेगा जब आप विजुलाइज करोगे कि आगे क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि महिलाएं, चूंकि तकलीफ आती है तो महिलाएं भी ज्यादा काम करना शुरू करेंगी, और महिलाएं ज्यादा काम करना शुरू करेंगी तो क्या क्या चीजें ज्यादा बिकेंगी कि महिला भी जा रही है, वहाँ ऑफिस से आ रही है, आदमी भी आ रहा है, वो भी थकी हुई है, वो भी थका हुआ है, तो किसी वक्त उसको मन करता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो उस वक्त एनटीआर का रेडीमेड पनीर बटर मसाला ले आती है जिसको गर्म पानी में डालो और खा लो। इसका मतलब फूड प्रोसेसिंग विल बी ए गुड फ्यूचर फॉर यू। अगर इस तरह से सोचोगे कि सोसाइटी में क्या क्या परिवर्तन आगे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन से जगह में जॉब्स आएंगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी और धनपत जी
कि आप कौन से एरियाज में जॉब्स देखते हैं, आप खुद डिसाइड करो और आप खुद विजुलाइज करो कि सोसाइटी में क्या होने वाला है और आपको मिलेगा जवाब। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ह्यूमर में ही बता रहा हूँ मैं कि आप होटल में तौलिया चोरी होती है, हाँ होटल में जो लोग रहते हैं या ट्रेन में भी छोटे छोटे नैपकिन चोरी होते हैं, लेकिन कोविड के बाद ये चोरी इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि सबको लगेगा कि मैं इन्फेक्शन तो नहीं है इससे। हाँ, इस तरह के चेंजेस छोटे छोटे आ रहे हैं जो आप विजुलाइज करिए। हाँ, ये मजाक हो सकता है। दूसरा है, अगर ट्रे में कोई खाना लाता है या पानी लाता है तो वो 3 फुट की दूरी कैसे रखेगा, इसका मतलब ट्रे के साथ एक हैंडल जुड़ जाएगा फ्यूचर में। हाँ, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप अगर विजुलाइज करेंगे तो आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा और आप खुद विजुलाइज कर पाएंगे कि दुनिया कहाँ जाए। तो मेरे इन बच्चों से आग्रह है कि मेरे को इतना लाख चाहिए, मैं इंजीनियर हूँ, मैं MBA हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, वो सब नहीं। मैं इतना सोच सकता हूँ, इसलिए इंडस्ट्री कहती है कि सिर्फ 25% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, क्योंकि 75% सोचते नहीं है जो उनको जरूरत है, उनको डिग्री की जरूरत नहीं है। तो क्या आप सोच पा रहे हो, या इस सोच को इस कोरोना के टाइम में डेवलप करिए बच्चों, आप लोग 100% सक्सेसफुल होंगे। इसमें और कुछ चीज है ही नहीं करने के लिए। दिमाग लगाओ और थिंक एंड थिंक एंड थिंक, यू विल विजुअलाइज व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू। क्वेश्चंस लीजिए। यस, थैंक यू सो मच सर। तो आप लोग दोनों ने जो इतना अच्छा हमें बताया है, तो उससे जो मेरा की टेक अवेज है वो मैं एक बार समराइज कर दूं सबके लिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज बी पॉजिटिव एंड वी हैव आल्सो टू बी इनोवेटिव, और हमें ये सोचना है कि फ्यूचर कैसा होगा और फिर उस फ्यूचर में क्या चीज़ें आ सकती हैं, उस हिसाब से हमें अपनी सोच बदलनी, एंड वी शुड बी रेडी टू एडजस्ट, एंड दैट इज द 4 takeaways that I have taken from your session. और इसके अलावा लाइक आप यहाँ पर आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हेड स्टार्ट भी है। दिस इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया जो कि इकोसिस्टम बनाता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। तो उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, फ्रॉम आइडिएशन स्टेज टू पिचिंग, इन्वेस्टर्स, एवरीथिंग, वी आर हियर टू हेल्प देम। तो अगर यहाँ पर कोई भी है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनको हेल्प चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट टू हेड स्टार्ट पटना। और यहाँ पर और क्वेश्चंस आए हैं। आकांक्षा राज है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स पोस्ट कोविड ड्यू टू लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटीज इन प्राइवेट सेक्टर्स दीस डेज? It is the other way around actually, that government is cutting down jobs. Even if it does not cut down jobs, what it is doing is it is stopping new recruitment. अंदर की बात ये बताऊं कि whether it is state government or central government, we are struggling to pay salaries. और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इज द फ्यूचर। आज मैं होटल चलाता था पहले गवर्नमेंट में, तो आजकल होटल्स हमने दे दी। क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है होटल चलाना, सर्विस इंडस्ट्री में हम नहीं डाल सकते। टेलीकॉम सेक्टर एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट के वास्ते हमने दे दिया। तो मुझे लगता है बच्चों की गवर्नमेंट जॉब्स आर गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट। जो लोग रिटायर होंगे उनकी जगह भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो नए जॉब्स क्रिएट होना बहुत मुश्किल बात है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जरूर ये बात होती है, और बैंकिंग की स्टेट का हालत देख के मुझे लगता है कि वहाँ पे भी नए रिक्रूटमेंट्स मुश्किल। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी डिम सिनारियो। द प्राइवेट सेक्टर इज फैंटास्टिक टू वर्क विद। आपको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट भी सख्त हो गया है। आपने देखा होगा पिछले मुझे लगता है 4 साल में 35 IAS ऑफिसर्स को निकाला गया है। तो आपको इसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे यही दिख रहे हैं कि हमने MBA किया है और आगे हम लोग अब क्या कर सकते हैं। सो एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट दैट। तो जैसे कि हमारे दोनों स्पीकर्स ने बहुत डिटेल में हमें बताया है, यू हैव टू लुक अराउंड एंड सी की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अभी ये मत सोचिए कि MBA किया है तो क्या करेंगे। थिंक पॉजिटिवली एंड कुछ भी इनोवेट करने की कोशिश कीजिए। गणपत राज जी ने एक बहुत अच्छा ये दिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए वेरी गुड ऑप्शन। लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपको बता ही रहा था कि जैसे साइकोलॉजी काउंसलिंग इज ए बिग डील, उसके लिए आप उस एरिया में कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी।
हाँ, जब भी स्टार्टअप बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मैं आई एम चैलेंजिंग कि मैं भी हेड स्टार्ट का एक भाग हूँ। आई ऑल्सो एम अ पार्ट ऑफ हेड स्टार्ट एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटीज पीपल ऑल्सो कमिंग इनटू दिस फील्ड नाउ। हाँ, तो एक ये दूसरा है, जैसे मैं बोल रहा था कि डिजिटल एडिक्शन बहुत बड़ी बीमारी होगी। गूगल इज वर्किंग ऑन दिस बिग टाइम, गूगल इज वर्किंग। हाँ, तो आप जैसे मैंने कहा फॉरेस्ट इन iOS एंड एप्रिजन करके एक ऐप आया है इन गूगल प्ले स्टोर। इट विल अलाउ यू टू कंट्रोल योर मोबाइल एडिक्शन। इस तरह की कुछ चीजें हैं। हैप्पीनेस इज बिग टाइम, यानी बहुत बड़ा है। हैप्पीनेस इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये समझ में आ गया लोगों को इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो हैप्पीनेस इज बिग। तो इस तरह की चीजें जो नई हैं, और घर में आप सोच रहे हो कि मुझे कॉलर टाई पहन के एयरटेल में एक कैबिन चाहिए, इस तरह की चीजें सोचना बंद करो। थिंक आउट ऑफ, बिल्कुल आप अपना भी चालू कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है खाली मत बैठना, तुमने अपने माँ बाप के बहुत पैसे गंवा दिए। यस सर, और इनफैक्ट आपने जो ये बोला एडिक्शन के बारे में, जैसे स्कूल में भी पहले सारे जो टीचर्स प्रिंसिपल्स होते थे वो बोलते थे कि अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखिए, उनको मोबाइल मत दीजिए। बट नाउ एवरीवन इज शिफ्टिंग टू ऑनलाइन क्लासेस एंड जितने भी उनके जो भी आ रहा है वो videos, everything is online. So they are spending more time on screens rather than they were spending before. तो ये एक वरदान है कोविड का कि टीचर्स से बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली आगे माने जाते थे और पेरेंट्स। हाँ, लेकिन वरदान है कि ये टीचर्स आज की तारीख में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वो सीख गए हैं कम से कम कि हमको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, देयर इज नो अदर को। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि व्हेन टीचर्स कहते हैं ना कि आप मोबाइल पे, ये बात सही है कि उस पर राशनिंग होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को लैपटॉप से दूर रखना हाँ फॉर एवर एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सारे एग्जाम्स आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन होंगी। हाँ, IIT JEE, AIEEE या नीट, ऑल ऑफ देम आर ऑनलाइन, और आप कह रहे हो कि इनको इनसे दूर रखो। तो दोनों में मुझे लगता है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और बच्चा ये बेहतर समझता है। वेरी ट्रू सर। धनपत सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि शुभम वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप्स। Yeah, I think because I have to move out at 6:50, I have gone through the chat box and I have seen about half a dozen questions. So I'll try to answer all the questions along with this question in the next 8-10 minutes to cover up all the things. I have also spent long time in Visakhapatnam, about 8 years. It's a beautiful place to stay and work. I was with Aditya Birla Group there. Okay, आपने मेरा इडली नहीं खाया होगा। There is an entrepreneur from Bangalore whose name is Mr. Mustafa. He creates batters, including the idli batter. He is now globally famous. He is a person who has specialized in batter supplies in different parts of the country for idli, dosa, vada, many things. And he has really grown up. And he learned this art from his mother and doing extremely great. No job is small, no job is big. I think some of the questions which I see in the chat box, first was related to job security. Now I think each one of us should feel that we have tons of competencies and capabilities. We have the best brain power. Every human being is innovating. So we should have a self-confidence that we can perform. And if X is not the right place, Y will be the right place. But why should we bother that we need a job security? The person on the other side will say we need your performance security. The world is changing. So I think we should rise much above the job security and create that we can give you these benefits. This is my USP. Each individual should be able to create an offer to the industry that if you employ me, I can bring improvements, innovations, progress, or breakthrough change in various things. So I think the time has come in the world to really bring in an approach of my personal USP in whatever field I want to work. That should be the approach, and we should rise above this. Second point that had come is, should we all have to go for doing an MBA? Nothing required. I know many people who have not done MBA but have become great people.
Take for example, Mr. Uh, uh, I'm missing the name. Sunil Bharti Mittal. He's not an MBA, but he's a global entrepreneur in India today. You take example of many other entrepreneurs who are not MBAs. So there is nothing like by having a degree you add value. You add value by the content you have. You create your thinking process, observing process. God has given you various senses. If you are able to use these senses, you can add a lot of value. Take example, a camera has one eye, but it can take a picture in detail. But God has given us two eyes. We can't take a picture in detail because we have tuned our eyes to see what we want to see. So we have become different. So I think you have to become the person who is using all the senses to the best of their ability to really do it. By just doing a course, you don't add value. By learning, by practicing, you will add value. I think when you want to do business, you have the ability to convince your customer. If you cannot convince your parents and they don't have confidence in you, you are not fit to do a business. So you need to have ability to explain to your parents how you plan to go, how you want to move forward, what are the challenges, and move forward. And don't think negative. Yeah, I may fail 2 times, what will happen? Don't start with that assumption, I will fail. I may click in first go. Be positive. I can give you many examples around the globe. Take the example of Bill Gates. He didn't succeed in the first venture. Steve Jobs, Apple, he didn't succeed in the first venture. You take the example of Ford Motor Company, Henry Ford, he didn't succeed. KFC, he didn't succeed in many attempts. Thomas Alva Edison, he didn't succeed in the first attempt. So I think if you start looking for people around you, you should think that every opportunity when you do it, it gives you an indirect learning that business has to be done in a different way, not this way. And learning and unlearning will be a continuous process throughout the journey. It is not that you have learned today, this will be useful 50 years later. We are not in the world of ambassador cars. Today, a new car model is born every week. So things have changed. The world is changing. So you need to really prepare for that. And jobs will demand a lot of innovations, a lot of new thoughts, a lot of new ideas. And I think each one of you are really capable to perform great things. It is only to new ideas will come to you. Great ideas will come to you. Till now you are not focused. Till now your priorities were different. But now when you are completing your education, your priorities has to be, what is my career journey? The answer has to come from you. Maybe it takes 6 months time, 12 months time. But be positive, things will happen. And these small things which really take you backwards, try to conquer them. And if you feel that, see good success stories around you. Just go to Google search and see people who are physically challenged, how they have become world famous, what was the turning point. We are more educated, we are physically fit. If they can do it, why not we? Or look towards young children below 15 years, how they have become global famous. What did they do unique? If they can do it, why not we? So I think that passion should be to self-inspiration, self-motivation, self-commitment. Great things will happen. Be positive and win people around you, and don't be carried away what people will say. I think I tried to cover up most of the questions which were there. So it was wonderful to be with you all. Thank you very much. I have another session at 6:15, so I will need your permission. Thank you very much. Thank you so much, sir, again for coming and joining us and enlightening us. It was a pleasure hearing you. And I'm sure the students have gained a lot from your conversation. Thank you, sir. Wonderful. Thank you. We also have some people who have raised their hands, sir. So, Dr. Jawahar, you can actually answer those questions. Okay. So yeah. Let's see who's raised. Manish Yeah. Raj. Manish Raj has raised the card. What is his question?
Yes. So, Arzu, can you please give the mic to Manish Raj? Meanwhile, Praveen, you had a question. Please raise your hand. We'll give you the mic also. Yeah, Nidhi has also requested. I think Manish is not able to connect. Can we connect Nidhi Sharma then? She has connected recently, so she must be here. Yeah, she's gone out. Maybe, okay. Yeah. Hello, Nidhi. Yes, Yeah, Nidhi. ma'am. Yeah, thank you for joining us. Please ask your question. What about your university, our examination now? Our examination? Your examination, I think the UGC has taken out a syllabus. Session will start from 1st of September now. So I think, sir, you can answer this question if you are aware of it. Yes, that notification has come in yesterday for different. What is your course? BSc Zoology? Yes, sir. I think 1st August it is or 1st September? 1st August, I think. 1st August is for the already enrolled students and the new And 1st students. September, or yes. But she is an enrolled student, I think. You are an already enrolled student. Which year you are? JD Women's College, Patna. Which year? कौन सा year? 2019. Batch ना हाँ तो then it will start from August 1st. Yeah. The new session. Sir, one All the question. best for that. हाँ, हिंदी में पूछिए, कोई बात नहीं. Yes, आप पूछिए. सर, हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर पोस्ट कोविड-19 के बाद सर? ये तो बहुत अच्छा सवाल है. हाँ, एनवायरमेंट बेहतर हो रहा है. आप देख रहे हैं व्हाट्सएप में घूम रहा है कि हिमालय दिखने लग गया है. हमारे रास्ते साफ हो गए हैं, ऑड इवन वगैरह. देखिए, प्रॉब्लम एनवायरमेंट का ये है कि हम लोग ठीक नहीं, आदमी ठीक नहीं है. हाँ, जब गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं, यानी गवर्नमेंट कोई दूध की दूली नहीं है, लेकिन फिर भी जब गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो लोग उसको मानते नहीं. यानी इंडस्ट्री पोल्यूशन के जो इक्विपमेंट लगाने चाहिए वो नहीं लगाती. जो पानी गंदा आता है वो नदियों में बह जाता है. जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं वो पूल नहीं करते हैं. हाँ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो जिम्मेदारी एक्चुअली हमारी है और नेचर दिखा देता है कि मैं कोविड भेज रहा हूँ जिससे पर्यावरण साफ हो जाएगा. और उसने भेज दिया और 3 महीने आपको अंदर कर दिया. जितनी भी गाड़ियाँ आपके घर में वो सब बंद है ना. तो आई थिंक इट इज गुड फॉर द वर्ल्ड दैट द एनवायरमेंट इज क्लीनिंग अप. बट आई थिंक दिस इज ए शॉर्ट टर्म थिंग. हम फिर रास्तों पे आएंगे तो फिर गंदा होगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि हम ही को सुधरना पड़ेगा. यस सर. राइट, थैंक यू सो मच निधि क्वेश्चन पूछने के लिए. हम नेक्स्ट प्रवीण से को माइक दे सकते हैं क्या? हेलो प्रवीण. प्रवीण जयपुर से हैं. प्रवीण प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए. हेलो प्रवीण. म्यूट में है शायद. कला जैसे विषय नहीं आया. प्रवीण ने क्वेश्चन असल में पूछा था. उन्होंने क्वेश्चन भी. उनका क्वेश्चन ये है कि वो फार्मा सेक्टर से है और वो अपना एक फार्मा रिटेल चेन स्टार्ट करना चाहते हैं. तो ही वांटेड टू नो दैट हाउ वी कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. ओके. तो ये प्रवीण के माइक की आवाज है क्या? ओके. प्रवीण, अगर आप सुन पा रहे हो तो फार्मा रिसर्च जो है ये पोस्ट कोविड इससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता. क्योंकि कोविड ने ऐसा कर दिया. अभी तक फार्मा रिसर्चर ये सोचता था कि मुझे सब चीजें पता है. कोविड ने ये दिखा दिया हमको कि आपको अभी बहुत कुछ पता करना है. तो फार्मा रिसर्च बढ़ने वाला है और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो फार्मा रिसर्च में जाना चाहते हैं प्लीज जाइए. हम आपको बैंक लोन्स कुछ भी देने को तैयार है गवर्नमेंट इस वक्त. तो फार्मा रिसर्च इज द इन थिंग. आप सही टाइम पे सही जगह पे हो, लेकिन
आप अगर सोचोगे, क्योंकि यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज जो बहुत बिक रही है, अगर टाटा का शेयर बहुत बिक रहा है और उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग उसको खरीदते हैं। हाँ, तो उससे अच्छा है कि आप ये सोच सकें कि आगे कौन सी चीज काम आए। हाँ, तो उस चीज पे अगर फार्मा रिसर्च करके अगर आप चलाएंगे तो बैंक तो लोन देगी। हाँ, मुद्रा लोन में यू आर एलिजिबल। लेकिन एक फार्मेसी काउंसिल कुछ ग्रांट्स देती है अगर आपका रिसर्च जो है, हाँ, वो न्यू एज रिसर्च है। हाँ, अगर कोई ये रिसर्च नई चीज है और ये रिसर्च मानवता के काम आने वाली है, दिस इज गुड फॉर द सोसाइटी, देन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिव्स ग्रांट्स, दे डोंट गिव लोन्स। आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, आपके रिसर्च को सप्लीमेंट करने के लिए एक पेपर निकालना पड़ेगा और वो पेपर उनको सबमिट करना पड़ेगा, आपको मिलने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन पुराने डर्रे पे काम मत करिएगा, कोई नई चीज पे रिसर्च करिए। थैंक यू सो मच। उन्होंने आई Hello sir, actually we are also live on Instagram right now, and there's someone who asked that what other measures are taken for early detection of COVID-19. So if you can just put some thoughts on that. So there is that rapid testing kit as the in which you take 15 minutes to give the result. But the unfortunate part of this is that the government has procured some faulty kits from China. Again, I am taking the name of China. So now what is happening is in those places where the testing has happened with this rapid testing kits, we are again doing the test. It is one part. The second is there is some research going on in which if we put a tape here on the forehead or near the nose, then we are able to detect whether the matter is inside the person or not. But it is still in research stage. We will not be able to, and that is an instant part of the research that is going on. So if you put the strip near the nose, the colors tell you whether he is corona infected or not. It's still in research stage. We are expecting another 3 months for that to come to the market. थैंक यू सर। हाँ, ये एक्चुअली सबके लिए ही नया है, इस तरह का किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। तो राइट, हमारे पास जूली और आयुष हैं। जूली ज्वाइन कर सकते हैं क्या? यस, हाय जूली। जूली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है। जूली, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? I think Julie, let mic different. Ayush Patel. Yeah, Ayush Patel, ISM पटना से। हाय आयुष। आवाज आ रही है सर? हाँ, आप क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। मतलब जैसे कि पार्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम सिटीज़ में, तो इस चीज़ को लेकर मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ कि सब लोग को जैसे भी है जितने पार्किंग फैसिलिटीज़ है उनको मैं मतलब टाई अप कर लूँगा एक ऐप डेवलप करके, और देन आफ्टर उससे मैं मतलब उन लोग को कंट्रोल करूँगा। तो समझ गया मैं समझ गया आपकी। स्टार्टअप इंडिया में 240 या 242 ऐसे पार्किंग सॉल्यूशंस हैं विच आर रजिस्टर्ड विद अस। हाँ, यानी ऑलमोस्ट हर शहर से हमारे पास जो मेजर शहर हैं इंडिया में, सब जगह से एक पार्किंग सॉल्यूशन का ये है। और इसमें बहुत सारे नए चीज़ें हैं। कोई दे आर ट्राइंग, यानी आप ये बोल रहे हो कि सारे पार्किंग हमारे पास मैप्ड रहेंगे। अगर मुझे पार्क करना है तो मैं पहले से बता दूंगा मुझे इस टाइम पे पार्क करना है, वो स्लॉट आपके लिए बुक हो जाएगा फॉर दैट पीरियड, है ना। तो दिस इज अगेन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि क्योंकि आप स्टार्टअप में हो, तो देखिए हेड स्टार्ट बेहतर बता पाएगा कि 10% लोग ही आप सक्सेस हो पाते हैं। उसका बेसिक कारण है कि जो आपके पास आइडिया होता है, उस आइडिया को ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये मेरा बच्चा है इसलिए मुझे प्यार हो जाता है उस आइडिया से। हाँ, और हर माँ बाप को बच्चा अच्छा लगने लगता है।
क्रिटिकली उसको ना आप सुनने की ताकत अगर रख पाओगे ना, तो उसमें आप आइडिया मत छोड़िए, लेकिन उस आइडिया में कुछ ऐसे वेरिएशंस लाइए जो आपके काम आ जाएगा। पार्किंग प्रॉब्लम में ही तो पार्किंग प्रॉब्लम में ही इनोवेशन और हो सकते हैं। अलग से बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। फंडिंग चाहिए तो सर फंडिंग अगर चाहिए क्या ऐसा बोल रहे हो? यस सर। तो आपने क्या you need to keep it on mute. बिल्कुल Hello. या Hello, sir. There are a few more questions now. There's one girl who is asking what are the career options we do with MSc. MSc what is the I- subject? I don't know. She only wrote that what are the career options we do MSc. Let the question be more specific. We'll take Yeah. next. Sure, sir. Right now there are no more questions right now that I see. These people who have raised their hands, anybody? Khushbu Agarwal, Ramba Kumari, Sweetie Sinha, no? There are no more questions. Khushbu Agarwal is coming in. Hello, sir. Actually, the question with what are the career options we do with MSc? That's in zoology. Zoology, okay. So there are many career options. One of the career options that you can look at is clinical research, which is a good area nowadays. Clinical research is when I do some research on a medicine or some something to do with pharma or something to do with any clinical practices. कि ये इंजेक्शन नस में लगाना चाहिए कि मसल में लगाना चाहिए, ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है। या फिर ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि क्या क्लोरोक्विन लेने से कोविड-19 ठीक हो सकता है, ये भी एक। तो उसमें क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं 6 महीने के लिए आदमियों पे, पहले जानवरों पे होता है फिर आदमियों पे होता है। तो क्लिनिकल रिसर्च इज दैट पार्ट ऑफ रिसर्च वेयर यू कैन डू दिस। एंड MSc जूलॉजी के बाद ये एक अच्छा विषय हो सकता है। दूसरा है फॉरेस्ट्री में अगर आप जा पाएंगे तो जाना चाहिए, हालांकि वो बॉटनी से ज़्यादा करीब है, लेकिन और तीसरा है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे सकती हैं। चौथा है आप नेट देकर PhD भी कर सकती हैं और लेक्चरर बन सकती हेलो, हैं। यस खुशबू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी मेरा MBA पास आउट है, दिस इज माय लास्ट सेमेस्टर and I want to know what are the career options available for me, because you know this is a rush situation and I am worried about my job. No, So what is your I can specialization? What is your specialization? Marketing, finance, Sir, HR? I'm doing Finance. finance and HR. Acha, finance and HR. See, I can't give. You have chosen a career already. You are into business administration. So there are two again options with you. One is that if you don't want to teach, Khushbu. So in case you want to teach, then you can teach BBA students. MBA is eligible to teach BBA students. The second option is that you should keep looking for direct recruitment of private banks, which I think there are 6,000 vacancies in the next 3 months who are looking for MBA students to be posted as branch sales officers or branch officers. So they take you are not supposed to give that exam. They have their own exams which happen online. But if you apply for them, the salary would start from 18,000 to 22,000. But after a year, the growth is good. So instead of looking at the initial salaries which you don't get as in the case of public sector banks, MBA Finance HR is a good option for private sector banks. You should opt for it. Sir, should I opt for only private sector or should I opt to public sector? Because in our society, it is said that
public sector is good for job security is there in public sector. I agree to what you are saying. I agree to what you are saying. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत आपने देखी है नहीं देखी, आप पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, 8 लीड बैंक्स को लिया गया जो अच्छा कर रही है, और उनके साथ जो कमजोर बैंक्स हैं उनको छोड़ दिया गया है, जो लॉस मेकिंग बैंक्स थे। हाँ, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज हो रही है, इसका मतलब है कि बहुत नौकरियां जाएंगी। हाँ, तो ये सिर्फ हमारे दिमाग में रह गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक इज बेटर, जबकि नए प्राइवेट सेक्टर बैंक खुल रहे हैं। तो आप दोनों में फर्क देखिएगा। एक दूसरी बात है, पब्लिक सेक्टर बैंक में घुसने के लिए जो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्या उसको पास करने लायक आप हैं कि सोसाइटी में जो कह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर सोसाइटी में ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छी है, तो क्या वो सोसाइटी आपको अंदर घुसा सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक में? ये सोच लीजिए, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक से आपको कोई रोक नहीं रहा है, तब तक आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है आप चले जाइए वहाँ। थैंक यू खुशबू सर। हमें ना चैट पे एक क्वेश्चन आया है जो मैं पूछना चाहूँगी। उन्होंने ये पूछा है कि सर क्या शिक्षा के क्षेत्र में कला जैसे विषयों के संदर्भ में जॉब सिक्योरिटी को आकांक्षा की निगाह से देखा जा सकता है? क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे वोकेशनल और साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो लेकिन जो कला के क्षेत्र में जो लोग हैं उनका मैं एक दुनिया का ट्रेंड बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और ये सवाल बहुत रिलेवेंट है। दुनिया में ये समझ में आ गया था क्योंकि बहुत दिन तक चलता रहा स्टेम स्टेम स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। हाँ, हम लोग बोलते रहे स्टेम स्टेम स्टेम, लेकिन बाद में एक सवाल जब पूछा गया कि आप कर लो स्टेम, हाँ, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करोगे? समाज में अप्लाई करोगे ना। तो समाज के बारे में आप जानोगे नहीं तो क्या अप्लाई करोगे स्टेम को? इसीलिए सारे IITs ने कंपलसरी कर दिया कि आपके पास ह्यूमैनिटीज होना चाहिए। हाँ, तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज आर 2 सब्जेक्ट्स जो दुनिया भर में इस वक्त राज कर रही हैं। हमारा माइंडसेट और कुछ टियर 2 टियर 3 सिटीज में अभी भी हम नहीं पहचान पाए कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज क्या है, लेकिन आप जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, इनके बारे में सुना है तो उसमें घुसना मुश्किल हो जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो आप मायूस मत हो जाइए, खादी हर जगह मिलता है। हाँ, तो आर्ट्स जो है इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, और नए नए एरियाज आर्ट के अंदर आ रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, तो आई थिंक यू शुड बी पॉजिटिव एंड लुक एट द न्यू एरियाज दैट आर कमिंग इन दिस एरियाज। थैंक यू सर, सच में। और मेघना को हम लोग माइक देख सकते हैं क्या? मेघना मानस्वी पटना वुमेन्स कॉलेज से हैं। हम इसके बाद 2 और सवाल लेंगे क्योंकि हमारा सेशन 6:30 तक ही था, तो हम लोग 2 और सवाल लेंगे। तो अगर आपके पास कुछ भी सवाल हैं तो उसको या तो क्वेश्चन टैब में डाल दीजिए या प्लीज़ अपना रेज योर हैंड करिए, तो हम लोग आपको माइक का ऑप्शन देंगे। मेघना है यहाँ पे? यस मेघना। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, पूछिए मैम। हेलो sir, I want to know that sir, what are the jobs in India after COVID, as I have students from last year? नहीं, आपकी आवाज कट गई, फिर से पूछिए। जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। Sir, what are the jobs in India? Yes, For sir. what? Sir, as For a what? mass communication student. ओके ओके ओके। तो मास कम्युनिकेशन के आज चूंकि आप कर ही रहे हो, BJMC आप कर रही हो, ओनली मास कम्युनिकेशन कर रहे हो? Only mass communication. Only mass. Okay. So the mass communication career opportunities are see, as long as the business does good, mass communication opportunities are good. I am seeing a bleak business scenario for the next 6 months at least, after which we'll bounce back. India is bound to bounce back. India में कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन 6 महीने में आपको करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मास कम्युनिकेशन तब होता है जब मेरे पास कुछ रहता है पब्लिक को बताने के लिए कि मैंने ये किया, कंपनी के हिसाब से बोल रहा हूँ।
जब कंपनी खुद ही अच्छा नहीं कर रही है तो पब्लिक को क्या बताएगी, इसलिए मास कम्युनिकेशन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट 6 months. बट इवेंचुअली व्हेन द कंपनी डज वेल, तो all companies, all banks, all governments need mass communication people to tell to the world, and to people from mass communication, the word is only that they know how to spread the word. तो ये तभी अच्छा होगा जब बिजनेस उठेगा, तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। रिक्रूटमेंट्स मास कम्युनिकेशन के थोड़े कम हो, बंद नहीं होंगे लेकिन थोड़े कम। ओके, यू कैन लुक एट टेकिंग, अच्छा फाइनल ईयर में हो अभी आप, अदरवाइज यू कैन टेक मास कम्युनिकेशन क्लासेस इन यूनिवर्सिटी और सम प्लेसेस और स्कूल्स, इवन स्कूल्स। सर किसी ने एक्चुअली क्वेश्चन टैग में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अभी सब कुछ ऑनलाइन चला जा रहा है, तो जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो जो टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्ट बनता था और वो जो इन्वायरमेंट होता है वो तो ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है, तो उससे कैसे हम लोग कोप अप कर सकते हैं? ये सवाल किसी ने चैट पे पूछ रखा है। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब एल्यूमनाई मीट में जाते हो स्कूल में, क्योंकि आप सब कॉलेज के बच्चे हो, तो स्कूल में जब जाते हो तो 10 लोगों ने आपको पढ़ाया होता है, हाँ, और लेकिन एक टीचर आपकी फेवरेट या होता है, और वो एक टीचर क्यों, बहुत अच्छा दिखता भी नहीं होगा या दिखती भी नहीं होगी, लेकिन वो फेवरेट रहती है। उसका बेसिक कारण है, हमने कभी कोशिश नहीं किया समझने की, वो टीचर का जो इमोशन रहता है पढ़ाने में, वो आपके दिल तक पहुंचता है। हाँ, तो टीचिंग प्लस इमोशन इज इक्वल टू लर्निंग, ये मेरा फॉर्मूला है। हाँ, ये इमोशन जब ऑनलाइन होता है क्लास, वो मिसिंग होता है, और ये बच्चों को फील होता है कि इमोशन पहुंच ही नहीं रहा है हमारे पास, ये बहुत मैकेनिकल टाइप का क्लास हो रहा है। लेकिन चूंकि हम इस तरह से फंसे हुए हैं कि अगर कुछ खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम सिर्फ दाल चावल तो खा ले, अगर सब्जी नहीं है तो उस तरह की सिचुएशन है। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स अदर देन दैट टू गो एंड ईट दाल चावल। आपको पूरी थाली इस वक्त मिलने के काबिल नहीं है कोरोना वायरस के दिन तक, तो यू विल हैव टू लेट गो एंड डू द ऑनलाइन थिंग्स एज ऑफ नाउ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे घरों में पेरेंट्स हैं, दे शुड टेक पार्ट इन दिस टीचिंग प्रोसेस, क्योंकि वो सामने है, टीचर भले ही सामने ना हो लेकिन पेरेंट्स सामने है, वो अगर इमोशन डाल सकता है। छोटे बच्चों के केस में ये होता है, और जवाहर सर की क्लास हम चलाते हैं, 11,500 बच्चे इसमें डेली आते हैं मेरे पास।